Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today, date is 17 July 2021, and I am teaching you chapter number 4. And name of the chapter is Eating Right. So let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video, student, I am discussing why conversation between the two students, that one of them is or we just example which is given in your book also, that one girl which is always fit and healthy, very energetic, and another one she become tired when she play the games, she feel weakness. So what is the reason for all those things? So reason is that the girl which is fit and healthy, that is taking a healthy diet, or you can say balanced diet, and that is the reason that girl is fit and healthy. And after that, and how I explain you about the nutrients. There are 5 main nutrients in our body, not in our body, in the food. Our body required them. Okay, nutrients are not in the body. We take these nutrients from the food, and our body need this nutrient. So that is like carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals. Okay, see, this is the name of the minerals. No, yesterday I am talking about the carbohydrates, and I have given you explanation of the carbohydrate. What are carbohydrates? Carbohydrates are energy giving food. ठीक है, whatever work, whatever activities which we do in our day to day life, for all that things, from where we are getting the energy, student, we are getting the energy from the carbohydrates. Okay, so and this carbohydrate rich diet is also very essential for the children, and even those people who are doing a lot of hard physical work. Okay, after that I discuss with you what are the sources, or in which food item you will find, or which food are the rich source of the carbohydrates. That things we have already discussed in our previous video. So now today I will explain you, when you are eating carbohydrates, so how this food is changed into which form in our body, and how our body use this food. Okay, so student, when we take a carbohydrates, and we get all these by eating the food. So when carbohydrate is break in the form of a glucose, is it clear? Carbohydrate is a break in the form of a glucose, and it gives energy to the brain and all other parts of the body. So it is necessary to maintain a sugar level also in the body. ठीक है, शुगर लेवल को भी मेंटेन रखना है, ठीक है, क्योंकि ये ग्लूकोज फॉर्म में ब्रेक हो रहा है. सो इसके लिए भी आपके बॉडी में एक हार्मोन्स होता है जिसको इंसुलिन बोलते हैं, एंड इट इज फॉर्म इन द पेनक्रियाज. ओके, सो दैट इज द रीजन, you note down for your understanding. So carbohydrates carbohydrate is like a sugar, which break in the body
which break in the body, which break in the body and form glucose. And form glucose. Is it clear? And now note down what is the role of glucose. Okay. Now role of glucose. Role of glucose. So it gives energy. It gives energy to brain and other parts. It gives energy to brain and other parts of the body. Is it clear? So glucose requirement glucose requirement glucose requirement is full by carbohydrates. From where we get the glucose? Carbohydrates. Okay. And another important thing is balancing sugar level in body. Balancing sugar level in body. There is a hormone known as insulin. Okay. And where it is formed? It is formed in the pancreas. Okay. So see student, carbohydrate. What is carbohydrate? Carbohydrate is like a sugar which break in the body. Is it clear? So carbohydrate is a sugar which break in the body and form glucose. Role of glucose क्या है? What is the role of glucose? It gives energy to brain and other parts of the body. So
What does it means? It means that glucose requirement is full by carbohydrate. How the glucose requirement is full? So glucose requirement is full by carbohydrates. Okay. Next, balancing sugar level in body. So how the sugar level in the body is a balance? So for balancing sugar level in body, there is a hormone, and this hormone is known as insulin. This hormone is known as insulin, and where it is formed? This hormone, it is formed in the pancreas. It is formed in the pancreas. Next is now fats. Next, uh, nutrient. First nutrient that I explained you, that is the carbohydrate, and the next nutrient is the fat. Okay. So student, the next is the next nutrient which I explained you, that is the fat. Okay. Now student, when we are talking about the fat, fat gives you more energy. ठीक है. फैट्स क्या है? इससे भी ज़्यादा एनर्जी देता है. किससे ज़्यादा एनर्जी देता है? कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी फैट में होती है. बट वी take fat in a limit amount. Okay. So for example, energy giving food is a fat. So fat provide more energy than carbohydrate, and they keep our body warm. Okay. Fats provide more energy than carbohydrate. Okay. Fat provide more energy than carbohydrate, and they keep our body warm also. But only that we have to take fat in a limit amount. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि बहुत, इसलिए क्योंकि फैट क्या है बेटा, एक ऐसा न्यूट्रेंट है, यही पूरे, जैसे भी मैंने सारे न्यूट्रेंट डिस्कस करूँगा आपसे, जैसे कि मैंने एक ऑलरेडी कर लिया कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स. सो आउट ऑफ दिस इज द ओनली न्यूट्रेंट विच कैन स्टोर इनसाइड द बॉडी. ठीक है. बाकी न्यूट्रेंट्स हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते. फैट एक ऐसा न्यूट्रेंट है जो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है. ठीक है. अब प्रॉब्लम क्या होती है, इट स्टार्ट स्टोर इफ वी स्टार्ट टेकिंग डाइट विच इज रिच सोर्स ऑफ ए फैट, देन इट स्टार्ट स्टोर इनसाइड आवर बॉडी. एंड एज यू नो दैट देयर आर वेरी मेनी इंटरनल ऑर्गन्स इन आवर बॉडी. ठीक है. हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, बहुत से सिस्टम है हमारी बॉडी में जो वर्कआउट कर रहे हैं. और मैंने इससे प्रीवियस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी आपको बताया है कि इंटरनल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन विच वंस आफ्टर ए बर्थ ऑफ ए चाइल्ड दे वर्क कंटिन्यूअस विदाउट स्टॉप, दे वर्क कंटिन्यूअस. इफ एनी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन फेल टू परफॉर्म इस फंक्शन, देन दैट पर्सन इज डेड. ठीक है. ये इंटरनल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनका वर्क, एक बार किसी की बर्थ हो गई उसके बाद से इनका फंक्शन कंटिन्यूअस चलता रहता है. इवन आप जब स्लीप करते हो, रेस्ट करते हो, तो भी आपके इंटरनल ऑर्गन वर्कआउट करते रहते हैं. ठीक है. वो कंटिन्यूअस वर्क करते हैं. ठीक है. तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है कि इंटरनल ऑर्गन्स क्या है,
अगर कोई भी इंटरनल ऑर्गन्स अपना फंक्शन करना बंद कर देता है तो वी गो टू द डॉक्टर, वी टेक द मेडिसिन, होता है ना। और फिर भी अगर कोई इंटरनल ऑर्गन ने अब मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो पा रहा है तो वो आदमी क्या हो जाता है, उस डेड हो जाता है, मर जाता है वो आदमी। तो अब ये जो आपका फैट क्या करता है, इट स्टोर इनसाइड योर बॉडी। अब ये आपके बॉडी के अंदर स्टोर होने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बॉडी के अंदर जब ये स्टोर होना स्टार्ट होगा तो ये क्या करेगा, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है, क्योंकि स्पेस अब इसको कहाँ से मिलेगी, अंदर बहुत से इंटरनल ऑर्गन्स भी हैं, अब ये भी स्टोर होना स्टार्ट हो गया, तो ये क्या करता है, बहुत से इंटरनल ऑर्गन के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। आपने सुना होगा बहुत लोग हार्ट अटैक से भी मर जाते हैं, कई लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, बहुत लोग लीवर, फैटी लीवर हो जाता है, इतना फैट उन्होंने ले लिया अपने डाइट में कि उनका लीवर फैटी हो गया। क्या, तो जब फैट एक्स्ट्रा होने लगेगा तो उसको जगह चाहिए ना। ऐसे में आप लोग देखते होंगे कि लोगों को बहुत, जो लोग फैट बहुत खाते हैं, आप देखते होंगे कि उनकी बहुत मोटे होते हैं वो लोग, ठीक है। उनके पेट आपको देखेगा कि जैसे एक एक्सरसाइज करने वाला आदमी, उसकी बॉडी पूरी शेप में होती है, ठीक है। लेकिन जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट निकलने लगता है ना, तो हमारी जो वैली है, जो हमारा पेट है, ये अलग से बाहर दिखने लगता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट होता जा रहा है, तो फैट ज़्यादा होता जा रहा है, तो इसलिए लोगों को, आप लोग कहते होंगे ना कि अरे वो देखो उसका कितना पेट निकला है, कितना मोटा आदमी है, ये है। तो ऐसा कंडीशन कब अराइज होती है, जब हमारी बॉडी में फैट ज़्यादा होता चला जाता है, ठीक है। इसलिए बॉडी के लिए एक्स्ट्रा फैट इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बॉडी में अगर एक्स्ट्रा फैट होगा तो आपको स्टमक से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगी, ठीक है। स्टमक से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स आपके अराइज हो जाएंगी ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा फैट, ठीक है। इसीलिए लोग अपने फैट को कम करने के लिए, आपने देखा होगा मॉर्निंग में लोग वॉकिंग पे जाते हैं, रनिंग करते हैं, दे डू लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज, दे डू लॉट ऑफ योगा, क्योंकि अब ये जो फैट जमा हो जाता है ये तो बॉडी के अंदर है, और बॉडी तो आपकी पूरी स्किन से कवर है। ऐसा नहीं है कि कहीं से आपने बॉडी ओपन की, यहाँ से बॉडी ओपन की और फैट निकाल के बाहर फेंक दिया, आप अपने हाथ से निकाल के नहीं ना फेंक सकते। इज इट क्लियर? सो इसको, फैट को खत्म करने के लिए लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, रनिंग करते हैं, सो लॉट ऑफ थिंग्स पीपल डू सो दैट दे लूज देयर वेट, ओके। सो ये एक्स्ट्रा फूड जो होता है ना, फैट की वजह से होता है, ठीक है। तो ये तुम लोग को बता ही दिया कि इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शन को क्या कर देता है, ये डिस्टर्ब कर देता है अगर एक्स्ट्रा फैट हो जाए हमारी बॉडी में, ठीक है। तो भले ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट फूड क्या है, वो न्यूट्रिएंट क्या है, वो स्टोर नहीं हो रहा आपकी बॉडी में। लेकिन फैट क्या है बेटा, आपकी बॉडी में स्टोर होता चला जा रहा है, ठीक है। सो ये रीज़न है। अगर आपको फैट देखना है तो आप कभी मीट के शॉप पे जाओ, पूरा फ्लेश क्या है, रेड कलर का होता है, ठीक है। मांस जो होता है हल्का रेड टाइप का होता है, ठीक है। लेकिन आप जो वाइट वाइट पोर्शन आपको फ्लैश के संग देखने के संग वाइट पोर्शन लगेगा, आपको वाइट पोर्शन, वाइट कलर का, ओके। वाइट कलर पोर्शन जो आपको, आप देखोगे वाइट कलर पोर्शन जो आपको पार्ट्स दिखेगा फ्लैश से जो लगा होगा, वो क्या होता है, वही फैट है बेटा, जिसको हिंदी में हम लोग चर्बी बोलते हैं, वो फैट है, ठीक है। तो वो पोर्शन आप अगर मीट शॉप पे नहीं उगाए होंगे, आपके घर में कभी मीट आए तो आप उसको ऑब्जर्व करना, जो आपको वाइट पोर्शन दिखेगा, फ्लैश फ्लैश हल्के रेड कलर का होता है, जो प्योर वाइट एकदम आपको दिखेगा, वही फैट होता है। यही फैट क्या होता है, बॉडी में स्टोर होता चला जाता है। ये फैट क्या है, यही फैट जो है बॉडी में स्टोर होता चला जाता है। अब जब ये एक्सेस स्टोर हो जाएगा तो सारे फंक्शंस इंटरनल ऑर्गन के डिस्टर्ब होंगे एंड यू विल सफर फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस से सफर करने लगोगे, ओके। सो देखो, ये हो गया
अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है दे आल्सो ये सब पॉइंट अंडरलाइन कर लेना। इन पॉइंट्स में से बहुत क्वेश्चन बनते हैं बेटा एग्जाम में। दे आल्सो हेल्प आवर बॉडी टू they also help our body to keep warm। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दे आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी दे आर स्टोर्ड in our body they are stored in our body as reserves। देखो I have written all these 4 points of the book on the board। when you are watching this video student, then you take a pencil and underline all these points because many questions are asked from these lines in the exam। which nutrient give more energy, fat or carbohydrate? So right answer is fat। next, due to which nutrient our keep our body warm? That is also fat। and there are 5 nutrients, that is carbohydrate, fat, protein, vitamin and mineral। so which is the nutrient which is stored inside our body in the form of a reserve so that our body can further utilize that? so that is also a fat। ठीक है, अगर कभी कभी होता है ना बहुत समय से भूखे हो, ठीक है, बाई चांस आपने खाना नहीं खाया है, अब आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है तब? ठीक है, ऐसे तो हम लोग डेली ईट करते हैं, बाई चांस एनी रीज़न हम खाना नहीं खा पाए, बहुत बिजी है, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या कहीं हम ऐसी जगह गए जहाँ हमें कोई होटल नहीं मिला, हम बहुत देर से खाना नहीं खाएं, फिर भी आप वर्कआउट कर लेते हो। ठीक है, तो उस समय आपकी बॉडी कहाँ से एनर्जी यूज़ करती है? यही रिजर्व फैट जो है, ठीक है, जो आपके बॉडी में जो फैट स्टोर है, इसी से बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है, जो ये आपका स्टोर फैट है। ठीक है, आप लोग ने वो सुना होगा एनिमल्स में बियर है, हाइबरनेशन पे चला जाता है, पूरे विंटर वाले लॉन्ग स्लीप। सोचो वो इतने महीने बिना खाए कैसे रहता है? हाउ दिस इज पॉसिबल? क्योंकि वो इतना खाना खाता है, इतना खाना खाता है, फिर उसके बाद अब जो बॉडी में इतना ज़्यादा फैट स्टोर हो जाता है, फिर वो इतने महीने जब सोया रहता है, स्लीप करता है, तो उसको यहीं से उसकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहती है। जो हमारा फैट होता है ना, बॉडी इसका यूज़ करती है। ठीक है, बॉडी इसका यूज़ तब करती है व्हेन यू डोंट ईट। अगर आपने ईट नहीं किया है तो जो आपका स्टोर्ड फैट है, इसी की एनर्जी से आपको एनर्जी मिलती है। आपने सुना होगा बहुत लोग स्लिम होने के लिए, पतले होने के लिए, पेट कम हो जाए, एक्सरसाइज भी करते हैं। बहुत से लोग डाइटिंग पे चले जाते हैं, सुना होगा आपने, डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग मीन्स बहुत कम खाना खा रहे हैं। डाइटिंग मीन्स बहुत कम खाना खा रहे हैं। जैसे रोज आप इतना खाना खाते हो, हम डाइटिंग पे हैं। मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, फिर इवनिंग में कुछ खा लिया, डिनर के समय फिर कुछ खा लिया, तो 4 टाइम्स या 3 टाइम्स आप ईट करते हो। और फिर डाइटिंग पे हो तो आप 1 टाइम ईट कर रहे हो। तो आपकी बॉडी को कहाँ से एनर्जी मिल रही है? तो डाइटिंग करने पे देखते हो ना आप, जो लोग डाइटिंग करते हैं तो देखते हो उनके बॉडी में कुछ चेंजेस आती हैं। लगता है उनको देख के कि हाँ, इन्होंने वेट लूज किया है, काफ़ी वेट इनका कम हुआ है। तो ये वेट जो कम होता है ना, तो उस समय जो बॉडी को प्रॉपर, जो बॉडी को एक हैबिट हो गई है इतने एनर्जी की, अब बॉडी को नहीं मिल रही है, आप फूड नहीं खा रहे हो, आप डाइटिंग पे हो, तो उस समय बॉडी ये जो स्टोर फैट होता है, इसकी एनर्जी को यूज़ करती है। ठीक है, जो स्टोर फैट होता है उसको बॉडी यूज़ करती है एज ए एनर्जी।
अब नेक्स्ट है कंज्यूमिंग टू मच फैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एज इट गेट स्टोर्ड अंडर आवर स्किन विच मे काज हेल्थ हैजर्ड, मतलब आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं क्योंकि ये स्किन के अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब नाउ नेक्स्ट है व्हाट आर द सोर्सेस, सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस ऑफ फूड है मतलब आपको फैट अब मिलता कहाँ से। सो व्हाट आर द सोर्सेस, दीज आर द रिच सोर्स ऑफ फैट, बटर, घी, चीज and cooking oil are rich sources of fat, are rich sources of, ठीक है। अब देखो सोर्सेस क्या है, सोर्सेस ऑफ फैट, बटर, घी, चीज, ये तीनों के तीनों ऑल दीज, ये क्या है, मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क के से ही है ये, ठीक है। आपका घी भी मिल्क से बनता है, बटर भी, पनीर भी, ये सब सब क्या है, मिल्क प्रोडक्ट है। मिल्क से बहुत चीज़ें बनती हैं, दैट इज द रीजन मिल्क इज नोन एज ए कंप्लीट डाइट। इसीलिए बेटा मिल्क को कंप्लीट डाइट बोला गया, उसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आपका कार्बोहाइड्रेट भी होगा, फैट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, विटामिन भी होगा, मिनरल्स भी होंगे और वाटर भी। दैट इज द रीजन द मिल्क इज नोन एज द कंप्लीट फूड। ओके, सो दैट इज द रीजन फॉर द ग्रोइंग चिल्ड्रन मस्ट ड्रिंक 2 ग्लास ऑफ मिल्क डेली, क्योंकि उनकी ग्रोथ हो रही है, उनकी हाइट बढ़ रही है, उनके ग्रोथ के लिए। इसीलिए देखो आपने कभी ध्यान दिया होगा जब बच्चे छोटे होते हैं, आपकी भी जब कभी बर्थ हुए होगे, पैदा हुए होगे, जब तक हम दूसरी चीज़ें खाना नहीं सीखते, सबसे पहले हमें मदर मिल्क में हमें फीड किया जाता है, ठीक है। क्योंकि हम किस कैटेगरी में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। मैमल्स क्या होते हैं, विच गिव बर्थ टू देयर बेबीज एंड फीड देयर बेबीज विद देयर ओन मिल्क, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को अपने मिल्क से फीड करते हैं, ठीक है, मदर फीड करती है। इज इट क्लियर? सो सोर्सेज ऑफ फूड क्या है, रिच सोर्स ऑफ फूड दैट इज द फैट, बटर है, घी है, चीज है एंड कुकिंग ऑयल, ये तुम्हारे जितने कुकिंग ऑयल है आर रिच सोर्सेज ऑफ फैट। ये सब क्या है, रिच सोर्सेज ऑफ फैट है। आई होप I have covered all the points, all the topic related to this fat. So just do little recapitulation. Fat, when we are talking about the fat, fat is give more energy than carbohydrate. Okay, fat give more energy than carbohydrate and they keep your body warm also. They keep your body warm also. But the thing is that we have to take fat in a limit amount because they store inside of our body, they store inside our body in the form of, ठीक है, they store inside of in our body। फैट क्या है, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होने लगते हैं और बॉडी में बहुत से इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो मैंने अभी फर्स्ट चैप्टर में तुम लोग से डिस्कस किया था, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो जब ये स्टोर होने लगेंगे बॉडी के अंदर तो ये दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स होंगे उनके फंक्शन को भी डिस्टर्ब करने लगेंगे एंड यू विल सफर फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। सो दैट इज द रीजन वी हैव टू टेक फैट इन अ लिमिट अमाउंट एंड अनदर थिंग इज दैट दिस फैट इज यूटिलाइज बाय आवर बॉडी। हमारी बॉडी इस फैट को यूटिलाइज करती है बेटा when we don't eat food, जब हमने फूड नहीं ईट किया है, ठीक है, जब आपने फूड नहीं ईट किया है देन आवर बॉडी यूटिलाइज दिस स्टोर फैट इन आवर बॉडी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।